سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی مولانا بشیر فاروق قادری کراچی کے علاقے پنجاب ٹاؤن کے فلیٹس میں رہتے ہیں۔ باہر آ کر خود استقبال کیا۔ فلیٹ کے باہر بیت درود لکھا ہوا ہے۔ گھر پر رکھے ہوئے تبرکات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور غلاف کعبہ کی زیارت کی۔ سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی ہیں۔ لاکھوں لوگ آپ کے لنگر خانوں سے روزانہ مستفیض ہوتے ہیں اور ہزاروں بچے آپ کے ذریعے سے مفت IT تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانے کا خیال کیسے آیا اور سیلانی نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی حادثے سے دوچار ہو کر کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا۔ بس ایک خلق خدا کی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچپنی سے عطا کر ہی دیا تھا، تو بس وہ ہم کیونکہ تاجر ہیں، ہم لوگ تجارت میں ہماری ہر سال جو زکوٰۃ نکلتی تھی، پہلے اس زکوٰۃ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو اپنے کاروباری مقام پر بیٹھ کر بھی یہ کام کرتے رہے۔ پھر دوسروں نے مشورہ دیا کہ یار کاروبار میں رہتے ہوئے یہ کام کیسے ہوگا، ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ہم نے الحمدللہ یہ سیلانی ویلفیئر کا ادارہ جو ہے قائم کیا۔ وجہ تسمیہ آپ نے پوچھی، بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ ہم الحمدللہ شروع سے اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ بچپنی سے مزارات پہ جانا، ولیوں سے فیض حاصل کرنا، تو خواجہ محمد الدین سیلانی ایک بہت بڑا نام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، زمانے کے غوث ہیں۔ ان کا مزار جو ہے بہاولپور میں ہے۔ بس وہاں جہاں ہم نے کام شروع کیا، وہاں پورا علاقہ انہی کا جو ہے دل دادا تھا، انہی سے محبت کرتا تھا، تو پھر ہم نے اس کا نام سیلانی رکھ لیا۔ پہلے تو خود کاروبار کیا کرتے تھے، سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی تو خود کاروبار چھوڑ دیا، اب گھر کا خرچ اور اپنا خرچ کیسے چلاتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2 بازو دیے ہیں، 2 بیٹے ہیں میرے پاس، تو کیونکہ کاروبار تو آج تک وہی چل رہا ہے جو ہمارا چلا آ رہا تھا کئی دہائیوں سے۔ کاروبار بند نہیں کیا ہے، یہ کہ جو ملازمین ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کو ہی اپنا آدھا پارٹنر بنا دیا ہے۔ ایک تو جو میں جہاں بیٹھا کرتا تھا، جو میرے بچے پڑھتے تھے، تو وہ آدھا کاروبار ہم نے ان کو کر دیا کہ 50% تمہارا 50% ہمارا، تو وہ ایماندار لوگ ملے تھے شروع سے، تو وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ وہ ہر ماہ ہمارے گھر میں جو نفع ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے جو تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، تو اس طرح 2-3 کاروبار سے جو ہے نا ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے۔ سیلانی ویلفیئر میں ہم نے ہر چیز سوچ لی ہے کہ ہم کوئی کام بھی ایسا ہرگز نہ کریں کہ جو گناہ جاریہ بنے۔ تو میں سیلانی سے تنخواہ تو دور کی بات ہے، میرا تصور ہے کہ سیلانی کا ایک پانی بھی اپنے پیسے سے پیوں، بلکہ یہ بات کہتے ہوئے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مرتے دم تک اس ادارے کی وجہ سے 1 انچ زمین بھی مت دینا، 1 ڈھیلا 1 روپیہ بھی مت دینا، اور 1 ڈھیلا عزت بھی مت دینا۔ جو تو اپنی طرف سے دے دے وہ دے دے، مجھے اس ادارے کا عوض دنیا میں نہیں چاہیے۔ سادہ سا گھر، سادہ طرز زندگی، دوسری طرف سیلانی ٹرسٹ جو ہے وہ اربوں کے پروجیکٹس چلا رہا ہے۔ بچے کہتے تو ہوں گے اب گھر بہتر کر لیں، طرز زندگی کو بہتر بنا لیں۔ آج تک میرے بچوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بڑا گھر چاہیے، بلکہ یہ بات دیکھیں میرے یہاں ہر طرف تبرکات موجود ہیں۔ میں یہاں بھی آنے کا میرا تصور نہیں تھا، میں تو ایک بہت ہی چھوٹے علاقے میں رہتا تھا۔ 10 سال پہلے 12 سال پہلے ہمارے ایک دوست نے یہ عمارت بنائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میں یہ گھر دینا چاہتا ہوں کوسٹ ٹو کوسٹ، جو ان کی رقم بنتی تھی۔ تو میرے بچے اسی علاقے میں پڑھتے تھے، دونوں باپ بیٹے عالم اور مفتی کا کورس کرتے تھے، تو میں اس حرص میں یہاں آ گیا، ورنہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں اسی گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ ایدھی صاحب بھی میمن، آپ بھی میمن، اور بھی میمن برادری کے بہت سارے لوگ فلاحی کام کرتے ہیں۔ کیا میمن طرز زندگی عام لوگوں سے مختلف ہے؟ شادیاں کس عمر میں ہوتی ہیں؟ کیوں زیادہ تر لوگ فلاحی کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میمن قوم ایک بہت خوش قسمت ترین قوم ہے۔
एक तो ये है कि मेमन के ऊपर एक अम्ब्रेला है, जैसे मैं बाटवा मेमन हूँ, कोई कुतियाण मेमन है, यदि साहब भी बाटवा मेमन थे। हमारे एक अम्ब्रेला भी है कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी अपनी मतलब कम्युनिटी का आदमी किसी तकलीफ के शिकार होगा तो उसको उनको जो है अम्ब्रेला मिल जाएगी, वो उनको मकान भी देंगे, शादी भी करा देंगे, रोज़गार भी देंगे। जो पाकिस्तान बना था तो सबसे पहले मेमनों ने ही तो बेरर चेक दिए थे रियासत को कि भाई जो चाहे भर लो इसमें, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। तो हमें असल में ये सारी चीज़ें वदियतें मिली हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में एक तो ये है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तलाक़ बहुत कम होती हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमारे फ़ैसले जमात कर देती है। हमारे अंदर वो आज तक मैंने नहीं सुना किसी मेमन ने किसी का कत्ल किया हो, किसी मेमन के पास असला भी नहीं होता, समझे। जिनके ज़रिए मुसलमान हुए थे आज से सदियों पहले, उस हस्ती ने हमारे दुआएं भी की थी कि इस कौम को अल्लाह ताला रोज़ तजारत का भी शौक़ दे और दीगर जो दुआएं की थी। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ही मतलब यानी कि अमन है। हमारी शादियाँ बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। हमारी शादियाँ 15.5-16 साल बच्ची की शादी हो जाती है। ये मेरी अपनी बहनों के घर में ऐसा हुआ है। हम ज़्यादा पढ़ाते नहीं बच्चियों के। हमारे यहाँ डॉक्टर मेमन बहुत कम मिलेंगी, यानी हमारी मेमन बच्चियाँ कहीं आपको जॉब करती हुई कम होंगी, लेकिन कम मिलेंगी। हमारे यहाँ बस समझिए कि बच्चियों का हमारा काम कि वो घर की चादर और चार दीवारी को संभालें। हमारे यहाँ ज़कात देने का तस्वर बड़ा पक्का है। सदक़ात, खैरात, फ़ितरे, कफ़ारे, फ़िदिये, और हर रोज़ कुछ न कुछ मेमन देना खर्च करता है। आपकी सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से तो लाखों लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। आपके रूहानी सिलसिले के मुरीदैन कितने हैं? वो तो करोड़ हो चुके हैं माशाल्लाह। क्योंकि असल में हमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमने शुरू किया था 99 में, जब हमारा इदारा शुरू था। मैं हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी साहब का मुरीद हूँ, जो हुज़ूर गौस पाक की सिलसिले से खलीफा है। क्योंकि हम तो गौस पाक करते हुए बड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो अम्मियाँ भी कहती जाओ गौस पाक के वसीले घर से निकल जाते हैं। तो इस तरह हमने जो है ना शुरू किया 99 में। करोड़ों तावीज़ात हमारे लोगों तक पहुँच चुके हैं, करोड़ों पूरी दुनिया में। तो उसकी तादाद तो अनलिमिट है। नाश्ते के लिए फ़र्श पर दस्तरखान बिछाया गया। नाश्ता में मदीना की खजूरें, दही और पराठे पेश किए गए। ज़मीन पर बैठकर बेटों और पोते पोतियों के हमरा नाश्ता किया। घर से रवाना हुए। क्या घर पर रेडियो टीवी वगैरह चलाते हैं? कवालियाँ तो सुनते होंगे। हालात हाज़रा की मालूमात के लिए अखबार दो आते हैं मेरे पास, वो पढ़ लेता हूँ, वरना इसके अलावा जो है टीवी रेडियो से दूर रहे। टीवी घर पर रखा ही नहीं हुआ? नहीं, टीवी घर पे नहीं रखा था। हर शख्स का सियासी रुझान तो कोई ना कोई होता है। आप किस पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है आपका? क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, आखिर किसके साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं? हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जहन बना लिया है कि हम किसी पार्टी का साथ देकर उसके नुमाइंदे बनकर जो है ना नहीं करना है, हमें पाकिस्तान का सबका साथ देना है। हज़रत आलम शाह बुखारी के मज़ार पर आए। फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम चलने वाले आरओ वाटर प्लांट का दौरा करने पहुंचे। खुद भी प्लांट का पानी पिया। सैलानी वेलफेयर ने लोगों के लिए मुफ्त पीने का साफ पानी जो है उसका भी इंतज़ाम किया। अब तक कितने प्लांट लगा चुके हैं और मुल्क में कहाँ कहाँ? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर तोरखम बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं माशाल्लाह, और कराची, हैदराबाद, हर के इलाके में
फिर फैसलाबाद, फिर पंजाब के छोटे छोटे गाँव में। तो तादाद तो 100 से ज़्यादा तजावज़ कर गई है, लेकिन 1200 लगाना है और इसका बजट है 1.2 बिलियन का बजट है हमारा। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि लोग फैज़याब हो रहे हैं माशाल्लाह। सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के किचन पहुंचे, किचन का दौरा किया। रोजाना कितने लोगों का खाना लंगर के लिए तैयार होता है? अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर सुबह सरहद तक तकरीबन हमने 36 लाख अफराद का, यानी 1.25 लाख आदमी को रोज़ाना। एक फर्द पर अंदाजन औसतन कितना खर्च होता है खाने पे? हमारा खाना रोज़ाना तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है। और एक फर्द पर कितने का? हम लेते तो 50 रुपये हैं, इसलिए लेते हैं कि हमारे पास गोश्त फ्री आ जाता है। अच्छा। क्योंकि हमारे पिछले महीने हमने जो है तकरीबन 3,000 और 30,000 बकरे ज़िबा की है एक महीने में। लिफ्ट के जरिए ऊपर वाले फ्लोर पर आए। जदीद रोटी प्लांट पर कराची में 80,000 रोटियां तैयार की जाती हैं। यहाँ से तैयार शुदा खाना पिकअप्स में लोड करके कराची और गिरदो नवाह में मौजूद लंगर खानों में भिजवाया जाता है। मौलाना, दुनियादारी और दीनदारी दोनों ज़ाहिर इकट्ठे ही चलते हैं। तो दुनियादारी में तो झूठ भी है, मतलब बरारी भी है, उससे कैसे बचते हैं आप? दावत तो नहीं है कि मैं बचता हूँगा, वो तो अल्लाह जानता है मेरा बातिन कितना अच्छा है कितना बुरा, तो अल्लाह जानता है। हम कोई पागसा नहीं है, हम ना वली हैं ना मोमिन, एक आम से मुसलमान हैं। ये अलग बात है, लोग हमें क्या समझते हो, ये उनकी अपनी सोच है। दुनियादारी से बचने का मामला ये है कि हम सारी ज़िंदगी दुनियादारी करते रहे। अब बच्चे इस लायक हो गए कि वो माशाल्लाह कमा खिला रहे हैं। मेरी ज़रूरत बहुत थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़मीन पर सोने का आदी हूँ। मेरे कमरे में कोई एसी वगैरह नहीं है, पूरा साल पंखे में सोते हैं। तो मेरे कमरे में वहाँ भी सैलानी पे कोई एसी मेरे पास नहीं है। आपका बैंक बैलेंस कितना है और जायदाद कितनी, और हर साल कितना टैक्स देते हैं? बैंक बैलेंस तो मेरा 1 रुपया भी नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जायदाद का जहाँ तक जिस घर में आप तशरीफ़ लाते हैं, ये मेरा अपना घर, एक ही घर है बस। और शॉप्स जो मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे मिली विरासत में, एक शॉप मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे मिली थी, और उसी विरासत के पैसे से मैंने एक शॉप और ली थी जिसको मैंने किराए पे दिया हुआ है। तो मेरा बैंक बैलेंस तो इसलिए ज़ीरो है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अपने बच्चों पर इन्हिसार करता हूँ। जहाँ तक टैक्स का बात है तो मैं हर साल टैक्स देता हूँ माशाल्लाह। जो हमारी दुकान चल रही है ना, इस साल भी हमने रिटर्न भरा है। ज़कात कितनी देते हैं? देखो भाई, मेरी अहलिया को जो है ना पास सोना है, समझे, मेरा बच्चा कारोबार कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात तो बहुत हो जाती है। वो न पूछे, वो रात में रहने क्योंकि हमें तो ताजिर तो है ना माशाल्लाह, तो अल्लाह ने बहुत अल्लाह ने दिया है, वो उन्हीं से निज़ाम चलता है हमारा। सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दारुल कफाला पहुंचे, लंगर खाने का दौरा किया। यहाँ तकसीम किया जाने वाला खाना खुद भी चखा। दारुल कफाला में किन लोगों की मदद की जाती है? 7 तरह के लोगों की मदद की जाती है। एक तो वो हैं जो बेवाएँ हैं, यतीम हैं। दूसरा जिनके शौहर बीमार हो गए और कम कमा नहीं सकते। एक वो हैं जो कम कमाते हैं, गुजारा नहीं होता। फिर इसके अलावा जो कैदी चले गए, कैद हो गए। इसी तरह जो लोग माजूर हो गए हैं, जो लोग घर छोड़ के चले गए हैं या मंशा कैदी हो गए। बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं लोग? हर एक की स्क्रूटनी होती है, हर एक को 3 महीने बाद दोबारा चेक भी किया जाता है, और इनके बच्चों को जॉब देकर इनको फिर किफ़ालत बंद कर दी जाती है। ज़िंदगी भर का फ़कीर ही बनाया जाता है। आप आटा भी देते हैं, घी भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, पूरा एक पैकेट देते हैं? जी, एक पैकेट होता है। हर एक किसी घर में 2 अफराद हैं, किसी घर में 11 अफराद हैं। अच्छा। हर शख्स के बाकायदा बने होते हैं कि ये 2 अफराद के घर का है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, 10 का, यूँ। यानी हर एक को एक जैसा नहीं होगा। कितने अफराद को आप ये पैकेट तकसीम करते हैं? रोज़ाना तकरीबन 50,000 आदमी को कच्ची खुराक से फ़ायदा हो रहा है सैलानी की।
सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने मोटरसाइकिलों पर फायर ब्रिगेड की सर्विस भी शुरू कर रखी है। महाना 600 खवातीन में जहेज का सामान तकसीम किया जाता है। ये 5 जो अपने बच्चों को नहीं बिया कर सकते, उनको या तो ये शेड दिया जाता है, क्या कहते हैं, बेडरूम। फिर इसमें जो है ना 3 पैकेज हमारे पास हैं। एक को सिर्फ खाना दिया जाता है, सिर्फ खाना उनको। एक को सिर्फ ये सेट दिया जाता है पूरा, और एक को सामान दिया जाता है जिसमें वॉशिंग मशीन भी होती है, ये मशीन भी होती है कि किसी चीज़ में सैलानी नहीं लिखा होगा, बच्ची को ताना ना मिले, ताना ना मिले। हमने माजी में ऐसा किया था कि 2-4 हमने इज्तिमाई शादियाँ करवाई, फिर हम पछतावा में चले गए कि नहीं यार, ये तो हमने उनको रुस्वा कर रहे हैं। फ्रिज के अंदर कच्चा गोश्त भी रखा जाता है। जरूरतमंद अपनी मर्जी से ये गोश्त ले सकता है। बहादुराबाद में वाक़या सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस आए। नमाज की इमामत करवाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो नमाज पढ़नी भी है और पढ़वानी भी। अगर हमारे घर में 10 बालिग अफराद हैं और 9 नमाज पढ़ते हैं, एक भी बेनमाजी है, तो उसकी वजह से भी पूरे घर को परेशानी रहेगी। नमाज के बाद मुरीदैन से मुलाकात की। नमाज के बाद मस्जिद के अंदर मौजूद गरीब अफराद को खुद खाना पेश किया। दर्जनों लोग आपसे रूहानी रहनुमाई और मशवरे के लिए आपसे रब्ता करते हैं। ज़्यादातर लोगों का मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो है रोज़गार का, जो रीढ़ की हड्डी है। कोरोना ने सारी कमर तोड़ डाली, फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल दिया है लोगों ने। ज़ाहिर है कि अगर ये इदारे ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। ये अल्लाह का निज़ाम है। एक बहुत बड़े एंकर ने अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनकी बात सुनी थी कि मैंने पाकिस्तान में किसी को भूखा मरते हुए नहीं देखा। क्या लोग जादू टूने के मशवरे के लिए भी आते हैं, बीमारियों की इलाज के लिए भी आते हैं आपके पास? जी, जादू के मसाइल में भी जो है ना अक्सर मालदार लोग होते हैं। गरीबों का जादू का मसला नहीं होता। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम जादू की काट करते हैं, 20 साल 22 साल कर रहे हैं। सरकत जिन्न वगैरह लोगों को पढ़ते हैं? जी, सरकत जिन्नात को भगाने का काम करते हैं। और हमने बराह रास्त वो काम किया है जो रसूल करीम ने अता फरमाया है। वो क्या है कि हम बराह रास्त सामना नहीं करते जिन्नात का भी, औरतों का भी, मर्दों के सामने। हमारे पास हदीस पाक की बहुत बड़ी किताब है बहकी शरीफ, उसमें एक तावीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में हज़रत अबू दुजाना को जिन ने तंग किया था। हुज़ूर ने फिर जिन्नात के नाम एक ख़त लिखा और फिर हज़रत अबू दुजाना को कहा कि जाओ अपने घर में रख दो इस ख़त को। फिर उस ख़त को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ख़त है, अब तो तावीज़ बना दिया है। वो हमने बिला मुबालगा 50 लाख से ज़्यादा वो तावीज़ बांट चुके होंगे हम। उससे जिन भाग जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाग जाते हैं। आपने कभी कोई ज़ाती ज़िंदगी में मोजज़ा देखा? देखिए, नबी तो देखता है मोजज़े, हम देखते हैं करामत। जी, करामत। सबसे बड़ी करामत तो ये है कि 1.25 लाख का आदमी खाना पक के चला जाता है। और एक साहब हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान की शख्सियत, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ किसी को खाने का उल्टी नहीं हुई, ये इससे बड़ी करामत क्या होगी। इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं, उनके मसाइल भी सुनते हैं, तो इससे आपको मसाइल के हल का इदराक भी हो जाता होगा। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमतों को क्या करना चाहिए? क्या कोताही है कि पाकिस्तान के मसले हल नहीं हो रहे? हुकूमत पाकिस्तान की सनतों को, सनतकारों को सहूलियत देगी तो एक सनतकार जो है 500 हज़ार, मेरे पास वो सनतकार भी हैं जिनके पास 50,000 आदमी काम करता है। तो अगर आप सनतकारों को पाकिस्तान में मशीनरी इंपोर्ट करने में आसानी करेंगे, जो माल बन जाता है उसको एक्सपोर्ट में आसानी होगी। रास्ते में जितनी एजेंसियां जो लूट मार का बाज़ार गर्म किए हुए हैं वो रुक जाएं और इन लूट मार के बाज़ार गर्म करने वालों को ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि अगर कोई इसमें रखना डालते हैं तो उनको वाकई इबरत का निशान बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और पाकिस्तान में लोगों का एक आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा। यानी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि दूसरे मुल्कों से आपको लोगों को मुलाजमत के लिए बुलाना पड़ेगा।
सूद के खात्मे का कोई आपके पास हल मौजूद है? सूद के खात्मे का हल मौजूद इस तरह इस एतबार से है कि इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रहमान ने आज से 100 साल पहले किताब लिखी है, जिसमें आपने लिखा कि सूद से बचने के 100 रास्ते हैं। बैंकिंग का पूरा निज़ाम सूद के बग़ैर चल सकता है, क्योंकि बैंक में जो आज मुदारबा हो रहा है, मुराहबा हो रहा है, बेसलम हो रही है, ये सब सूद से हटकर चीज़ें हैं, इजारा हो रहा है। तो अगर ये बैंकों को, क्योंकि हमने तो पीएम को सामने कह दिया था, हमारे साथ हज़रत साहब बैठे थे हमारे, मैंने उस पूरी दुनिया मीडिया ने उसको कवर भी किया। मैंने कहा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बार बार एक बात करते हैं, रियासत मदीना और सूद एक साथ नहीं चल सकते। तो सूद के खात्मे का निज़ाम मौजूद है। अगर ये सारी बैंकों को दोबारा से ऊपर लाया जाए तो खत्म हो जाएगा। सैलानी मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का दौरा किया। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है वो बहाई मज़हब है, और यहाँ पर किसी किस्म का तासुब नहीं है मज़हबी लिहाज से, और हमेशा मुझे अपने हिदायत और गाइडेंस मुझे देते हैं, और मेरा एक फर्म बिलीफ़ है इनके अंदर, और मैं हमेशा दुआ के लिए और इस्तिखारा के लिए इनसे रुजू ज़रूर करता हूँ, और ये खुद गवाह है इस बात का। कितना बड़ा है आपका ये सेंटर, आपका ये सेक्शन जो है मेडिकल? सर मेडिकल डायग्नोस्टिक 3rd बिगेस्ट सेंटर है सैलानी का, जिसमें पूरे कराची में हमारे 8 मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं जो सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को ट्रीट की जाती है। एक हैदराबाद में है। हमारे 25 हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, हमारे पैनल पर है, और वो सैलानी के साथ नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे साथ काम करते हैं। कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास? सर मेडिकल में तकरीबन हमारे 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, और यहाँ पर भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, यानी हमारे पास न सिर्फ मुस्लिम्स के अलावा हिंदू कम्युनिटी से भी आते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आते हैं, उनको वेलफेयर फंड से उनको हेल्प किया जाता है, उनको भी उसी तरह हम ट्रीटमेंट देते हैं जिस तरह मुस्लिम हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं। टोटल कितने एम्प्लॉइज़ हैं सैलानी वेलफेयर के? ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4000 से ज़्यादा है मुलाजमीन हमारे पास, 4000 से ज़्यादा है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में? जी हाँ, कराची से लेकर खैबर तक। अब कितने मुल्कों में आपका नेटवर्क है? वैसे तो पाकिस्तान के अलावा तुर्की और बरतानिया और अमेरिका में। तुर्की में क्या सेटअप है, बरतानिया में, अमेरिका में क्या? देखिए तुर्की में हमने जो है सीरिया के लोगों के लिए हमने तुर्की के बॉर्डर, सीरिया के बॉर्डर पर किलिस जो एक शहर है, वहाँ बॉर्डर है, वहाँ हमने एक ब्रेड प्लांट बनाया है जिसमें 1 लाख ब्रेड हर दिन बन सकती है। अच्छा। और 40,000 अफराद का खाना बन सकता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये शामी लोगों के लिए जो शामी लोगों के लिए हमने शाम में जाकर भी बहुत मतलब मरतबा अंदर जाकर, मैं भी गया हूँ, हमारे साथ एडवाइज़र भी हमारे गए थे, तो हमने अंदर जाके मदद की। लेकिन ये एक दायमी मदद है। वहाँ के जो किलिस के जो मुफ्ती आज़म हैं वो बाकायदा अनाउंस करते जुमे के दिन कि भाई ये आप यहाँ पर आटा दे जाएँ, तो लोग वहाँ हमें वहाँ पर चलाने की कोई परेशानी नहीं है, हमने बना के दे दिया, और वो माशाल्लाह सदका जारी शुरू हो चुका। इस तरह बरतानिया में 10 से 12 साल से हमारा नॉटिंगम में दफ्तर है, वहाँ हमारे इस्तिखारे के लोग जमा आते हैं। जितने इस्तिखारे बैरून मुल्क के रहने वालों को जादू का मसाला ज़्यादा है, यहाँ इतने नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं वो जन्नत में रह रहे हैं। जन्नत में क्यों रहे भाई, हम यहाँ दो में रह रहे हैं, समझिए। तो होता ये है कि वहाँ इस्तिखारों के बाद डोनेशन जमा होती है, तो फिर उससे लोग हमारे सदक़े के बकरी के पैसे जमा कराते हैं, यहाँ बकरी जमा होते हैं, फिर हम उनकी रिकॉर्डिंग भिजवा देते हैं। इसी तरह रमज़ान की ज़कात और इसकी तरह बकरीद में कुर्बानियाँ, तो एक वो वहाँ खर्च नहीं है, खर्च खाली दफ्तर का है, वहाँ के मुलाजमीन का है। पांचवें फ्लोर पर बनाए गए जदीद IT सेंटर का दौरा किया। मेरा नाम गौस अहमद है। मैं भी आप लोगों की तरह ही सैलानी का स्टूडेंट था, बैच 4.1 का। 2017 में मैं जब आया था तो तकरीबन उस टाइम पे मैं जॉब ही ढूंढ रहा था, और इस टाइप की भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी कि मैं 10,000 ले सकूं कहीं से। तो हुआ ये कि मैंने यहाँ पे कोर्स वगैरह स्टार्ट करा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना स्टार्टअप है सॉफ्टवेयर हाउस का, जिसमें मेरे पास 10+ एम्प्लॉइज़ भी हैं और मैं उनको लीड कर रहा हूँ। और ये जो
ہمارے حضرت صاحب بشیر فاروقی صاحب کا یہ جو ویژن ہے کہ ہم پاکستان کا قرض اتاریں گے، انشاءاللہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ مولانا، لوگ سوال تو کرتے ہوں گے کہ کہاں دینی مدرسوں کا قدیمی نظام اور کہاں جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم، اس تضاد کو کیسے سمجھاتے ہیں آپ؟ نہیں، اب ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کوئی مولانا ایسا نہیں ہے اس کے پاس موبائل نہ ہو۔ سر، اب تو ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں جیسے کہ تنظیم المدارس ہے، اس نے لازم کر دیا کہ بچے کو سب پڑھانا ہے۔ اب اسکول پڑھانی ہے، جو بچہ شروع میں آتا ہے پہلے درجے سے اور 8ویں 7ویں درجے تک جاتا ہے، ہر ایک کو پڑھانا ہے۔ تو وہ ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں الگ نہیں چلے گا، اب ساتھ چلے گا۔ آپ کتنے بچوں کو آئی ٹی اور کمپیوٹر کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور آپ کا اصلی خواب کیا ہے؟ دیکھیں، 1 ملین تک تو ہمارا ابھی تک خیال بنا ہے کہ 1 ملین تک ہم جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم 1 لاکھ بچوں پر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ 1 لاکھ بچہ ہمارا $10 بلین کما کر ہر سال دے گا انشاءاللہ پاکستان کو، اور جب 1 ملین ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ $100 بلین ہر سال کما کے دیں گے۔ بھارت جب اتنا کما سکتا ہے تو ہم نہیں کما سکتے؟ ہمارے پاس تو ایمان بھی ہے اور جذبہ بھی ہے۔ کانفرنس روم میں آئے وفد نے سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آئندہ ہاؤسنگ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد میں سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر یوسف لاکھانی، محمد انور داؤد، حمزہ تابانی اور عرفان عبدالواحد شامل تھے۔ ہم نے 2000 سے کام شروع کیا ہے لوگوں کو مکان بنا کے دینے کا۔ ابھی الحمدللہ ہم ان لوگوں سے بار بار مل رہے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ مکان بنائیں۔ ہم نے 3-4 میٹنگیں کی ہیں ان سے۔ وزیر اعظم نے جو 50 لاکھ کی بات کی نا مکان کی، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس میں بھی ہماری پارٹنرشپ ہوگی، لیکن ہم اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے 100 مکان بن رہے ہیں، اس طرح 252 مکان ہمارے بننے جا رہے ہیں وہاں پر حیدرآباد میں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ہم نے ان سے 400 مکان کی بات کی ہے ملیر کے اندر۔ ہم نے گورنر سندھ کو جو ہے کہا کہ اب ہمارے 92 مکان تیار ہو چکے ہیں 92، آپ ان کی کیز دیں لوگوں کو۔ جناب، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، وہ مکان جس دن ہم نے لوگوں کو ان کی چابیاں دی ہیں، اس دن اس مکان کی ویلیو بھی 31-32 لاکھ تھی۔ ہم نے لوگوں کو دیا 21-22 لاکھ کا، اور وہ ویلیو والا 10 لاکھ کم میں دیا، اور دیا 15 سال کی قسطوں پر۔ اگر یہ مکان قسط پہ دیا جائے تو 70 لاکھ ہونا چاہیے۔ 70 لاکھ کا مکان 21 لاکھ کا دیا، تو یہ ایک سوچ ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو مکان کا مالک بنایا جائے۔ اپنے کمرے میں آئے دور دراز سے آئے ہوئے افراد کے مسائل سنے اور استخارے کے ذریعے ان کے حل بتائے۔ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے استخارات کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا جو نام ہے اس کو ذہن میں لاتے ہیں اور آسمان سے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے، یا آپ کوئی روحانی کلام پڑھتے ہیں یا قرآنی کلام پڑھتے ہیں جس سے کوئی اشارہ لیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا عطا فرمائی، چھوٹی استخارے کی، بڑی دعا بھی آتی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اخر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ اس دعا کے معنی مطالب یہ ہیں کہ یا اللہ میں وہ اختیار کروں جو تجھے پسند ہو، اور مجھے میرے اختیار پر مت چھوڑ۔ یہ دعا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دی ہوئی ہے۔ اب آپ کو کوئی کام کرنا ہے، شادی کا، سفر کا، کاروبار کا، تو آپ یہ دعا خود پڑھتے رہیں، تو آپ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں آپ کو بات القا ہو جائے، آپ کو کہ اب یہ مجھے کام ہی کرنا ہے یا نہیں کرنا، خود ہی آپ کو اشارہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، دل کہے گا، دل آپ کا اندر جو موجود ہے، دل وہ کہے گا کہ نہیں اب یہ کام کر لو۔ میرے پاس تو ہمارے پاس دنیا ہے نا، تو پھر ہم اس تصویر سے اشارہ لیتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، سادہ پڑھتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ پڑھتے ہیں، کبھی اس سے کم پڑھتے ہیں، تو بس پھر وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ جواب دینا ہے، اس کو یہ جواب دینا ہے۔ یہ ہمیں ایک ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ ہتھیار بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ کوئی تصویر سے کرتے ہیں، کوئی قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور ہمارے اس خط کے اندر ایک 6 رکعت کا استخارہ موجود ہے۔ جو آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو نا، جیسے ابھی آپ نے ملک کے باہر جانا ہو،
تو یہ خیر یارہ شر یارہ والی 2 آیتوں کا استخارہ ہے. یہ 1100 سال پرانا واقعہ ہے. 1100 سال پرانے بزرگ گزرے ہیں, امام سمرقندی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا یہ. تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے اس پہ لکھ دیا ہے کہ بھئی آپ خود بھی استخارہ کر لیں. ہم نے تو کہہ دیا بیٹی کی شادی صحیح ہے, ہم نے کہہ دیا دکان صحیح ہے, گھر صحیح ہے, کاروبار صحیح ہے, سفر صحیح ہے, لیکن آپ خود بھی اس پر عمل کریں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے آپ کی سے. تو ہم نے یہ استخارہ جو ہے نا یہ بھی لوگوں کو دے دیا. اس خط اب ضرور پڑھواتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جب گئے 2 پریشانی لے کے گئے. ایک ان کا تنگ دستی تھی, دوسرا ان کا بیٹا قید ہو گیا تھا. تو سرکار کریم نے یہ نہیں کہا کہ عوف یہ پڑھ لو, ساتھ فرمایا تم دونوں میاں بیوی پڑھو بھی اور صبر اور تقوی کے ساتھ پڑھو. تو پتہ چلا کہ سرکار خالی علاج نہیں دیتے تھے بلکہ نصیحت بھی دیتے تھے. تو ہم نے اس خط کو نصیحت سے مطلب کہ آراستہ کیا ہے. بہت سے لوگ دوبارہ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے کہ ان کا استخارہ جو تھا وہ کس حد تک کامیاب رہا, کس حد تک ناکام رہا. اس حوالے سے کیا آپ کو اطلاعات ملتی ہیں؟ دیکھیں, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا, جیسے کہ فی سبیل اللہ کی کتاب یہ بھی دیا جا رہا ہے, علاج بھی دیا جا رہا ہے, کھجوریں دی جا رہی ہے, تیل دیا جا رہا ہے, اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے. تو ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ ہمارے پاس کوئی لالچ نہیں ہے نا. نتیجتاً بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو استخارے کے بعد شکایت نہیں کرتی. ایسے لوگ آئے ہوں گے کہ استخارہ کر کے شادی کیے لیکن گھر نہیں چل رہا, استخارہ کر کے دکان کیے. تو ہم نے یہ کب کہا کہ ہم کوئی علیم ہیں؟ ہم تو ایک عام انسان ہیں, ہم مومن بھی نہیں ہیں, مسلمان ہیں صرف جو مسلمان ہوتا ہے. تو ہم نے تو یہ اپنا کام کیا ہے, بقیہ آپ کی مطلب یعنی کہ کوشش سے ہوتا رہے گا. تو کیونکہ جو لوگ آتے ہیں حسن ظن کے ساتھ, یقین سے آتے ہیں کہ یار یہاں جا رہے ہیں نا تو یہاں کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی جان پہچان نہیں ہے, کوئی سورس نہیں چاہیے مجھ تک ملنے کے لیے, کوئی سورس بھی نہیں چاہیے. تو اس طرح یہ جو کچھ اچھی نیت ہے نا اس سے ہم جیت رہے ہیں بس. رات کے وقت اپنے ایڈوائزر افضل چمیڈا کے گھر آئے. افضل چمیڈا نے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا.